I welcome all of you today's webinar on refund under GST, and on this subject our learned speaker, star speaker CA Asu Dalmiaji is with us. His brief profile is like this. Asu Dalmiaji is the managing partner of the firm Aap and Company, having head office in Connaught Place, Delhi, and other office in Pune, Surat, and Faridabad. He is a rank holder in a CA inter exam and also at graduation level from Lucknow University. He has been working extensively in GST training, consultancy and litigation in India, and also handled VAT implementation project for mid and large corporates in Saudi Arabia. He is taking classes for GST for CA finals. He has taken more than 500 workshops at various forums. He was a special invitee to Indirect Tax Committee of ICAI for year 2018-19. He is faculty in ICAI to train professional for GST in India and VAT for UAE. He has authored various books on GST. This is the brief profile of our today's speaker. With this, I once again welcome Dalmia ji, and over to Thank you, you, sir. sir. Thank you very much, sir. Over सर to you, sir. सर एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर करने का राइट दे दीजिए. आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन. अरे एक सेकंड में सर दे रहा हूँ. हो गया सर आपके लिए. ओके सर. कोहली साहब भी आ गए हैं हमारे, और धमीजा जी, जगदीश जी हैं ही हैं ऑलरेडी. सर शुड आई स्टार्ट? हाँ सर, माय प्लेजर. ओके ओके सर. थैंक यू वेरी मच. Basically, I am thankful to the study circle and Rajesh ji for inviting me. The topic for today is refund. I think everybody, we are all dealing with the refund in day-to-day life, and within the time period, what we'll be doing, we'll be touching about few basic issues, which and the recent changes in the refund. Then at the end of it, we'll try to discuss the question answers maximum to the extent possible, so that we can discuss the issues which are arising and try to seek the possible solutions. So when we talk about the refunds, basically for the purpose of refund, technically section 54 of the CGST Act is the basic principal section, and any of the issue or any of the problem is only from that section only. And out of that section 54.8 is the basic section which provides when the refunds can be granted in the way of cash, because this is the only basic section. If you are falling into section 54 subsection 8, refunds can be granted. I'm not going into detail, just I'm touching about the basic theme, where the things are coming out. So basically it is covering 6 clauses where the refunds can be granted. Practically I'll be trying to discuss it separately in different bifurcated different clause. But when we talk about ITC refund, ITC is governed by section 54 subsection 3. Whenever the refund of ITC is there, then it has to be governed by section 54 subsection 3. There are 2 specific situations when the refunds can be granted. One is for zero rated supplies, and then credit accumulated. That will define. Basically, these 2 provisions we'll try to discuss today in detail, how the things are moving in that way. Now, if we club section 54.8 and section 54 subsection 3, these are the various possibilities when the refunds can be granted. First of all, what we have to understand, when we are talking the refund has to be granted. Refund हमें किस चीज का मिलेगा? Prima facie refund मिलेगा या तो ITC जो मैंने पे किया है, in different scenarios we will discuss कि कैसे वो ITC governed होगा, या मैंने जो taxes पे किए हैं वो, या फिर any other amount. My voice is clear? Yes, sir. Okay, thank you. So basically, when we talk about the refund या तो मेरा ITC का होगा, या tax paid का होगा, या any amount का. Any other amount means मैंने मान लीजिए कुछ excess cash reserve में ज़्यादा जमा करा दिया, which is not taxed, then that can be refunded. So basically, these are the basic 3 category of the refund. And if we talk about the specific form and all that, these are the basic criteria, basic definition where the refunds will be arising.
So the first is the refund of the unutilized ITC on account of export of, first of all, when I'm doing the export of either goods or services, I can claim the ITC of the input and input tax input services. I can take the refund of the IGST against the export of goods and services. I can take the refund against supply to SEZ units or the SEZ developers. Then there is the concept of the deemed export. Then those can be taken refund. If I paid something in excess, then as a cash ledger, I can take it. I have paid excess cash, then I can take the refund. The refunds may arise on because of any order, assessment orders, then those refunds are separately can be done. And there may be other grounds is also given if you have paid something which you have to refund, then other possibilities are also on the other ground. Then the specialized agencies, when like UNO and all that, those can take the refunds. So basically these are the various permutation combination where the refunds can be granted. And one thing we have to keep in mind practically, what I understand, law को देखने के दो तरीके हैं. एक तो ये है कि what the different high courts are saying, what the litigations are going on. And the second, because when we see the law and the implementation, there are certain gaps. That means मेरा जो law कह रहा है, फिर उसके बाद में मेरा जो rule कह रहा है, फिर उसके बाद में जो circular कह रहा है, there are certain gaps into it. So there are two ways of looking into it. One, I go for the litigation and I challenge the things in the high court. But practically what I feel, वो मेरे सिर्फ 5% assessee ही हैं, 5% client ही हैं. बाकी जो 95% assessees हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे को रिफंड मिल जाना चाहिए, मेरे को एक की जगह दो भी इंफॉर्मेशन देनी पड़े तो मेरे को उस चीज का चैलेंज नहीं है. सो बेसिकली टुडे व्हाट आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि सर्कुलर में कैसे चीजों को डिफाइन किया गया है, कैसे डील किया गया है, and how the refunds can be granted that way. एक important change हमारा रूल 86(4)A, I will start with that. इसमें ये हमारा 2020 में ही चेंज आया है. होता क्या है कि जब हम रिफंड ग्रांट अप्लाई करते हैं तो रिफंड अप्लाई करने में मेरे को सारा का सारा कैश मिलता है, भले ही मैंने उसको क्रेडिट से पे किया हो. दिस रूल 86(4)A पुट्स अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर मैंने कोई रिफंड क्लेम करा है बिकॉज ऑफ द एक्सेस और रॉन्ग टैक्स पेड, और वो मैंने टैक्स पे किया है बिकॉज मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया था, तो मेरे को रिफंड कैश में नहीं मिलेगा. We just try to understand with that example see what it says. Let's say in the month of March मेरे पास ITC था 10 लाख रुपए का, मेरे पास आउटपुट टैक्स था 1 लाख रुपए का. अगर मैं एक्चुअल में रिटर्न भरता और सही से रिटर्न भरता तो मैं आउटपुट टैक्स 1 लाख रुपए को अपने ITC से सेट ऑफ कर देता और ITC मेरा 9 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो जाता. लेकिन बाय मिस्टेक व्हाट आई डिड, मैंने अपनी आउटपुट सप्लाई को 10 लाख रुपए दिखा दिया और 10 लाख रुपए से एडजस्ट कर दिया, यानी कि मैंने कुछ पे नहीं किया. उसके बाद में मैंने रिफंड अप्लाई कर दिया कि मैंने गलती से अपने टैक्स को 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए दिखा दिया और मैंने उसको पे भी कर दिया है, काइंडली ग्रांट मी द रिफंड. यहां पर रूल 86(4) का प्रोविजन विल बी इम्प्लीमेंटेड 4A का कि अगर मैंने अपने क्रेडिट लेजर से टैक्स को पे किया है और मैं उसको रिफंड क्लेम कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सेस रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, देन मेरा जो रिफंड है वो भी क्रेडिट लेजर में ही क्रेडिट रिस्टोर होगा, मेरे को कैश रिफंड नहीं मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मैंने कैश एक्सेस का या टैक्सेस पेड एक्सेस का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं तो अगर मैंने क्रेडिट से पे किया है तो मेरे को क्रेडिट से ही रिफंड मिलेगा. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. दैट इज ए न्यू चेंज इफेक्टेड इन 2020 ओनली. Now, two important basic definitions because that is relevant for the purpose of when we are dealing with the refunds. And I hope, and I not the hope, but what I feel ki a lot of issues are going to come because of these things. I discuss one by one. Export of goods, the definition is very clear when we are taking the goods out of India.
But when we talk about export of services, there are 5 conditions. All we know: supplier is in India, recipient outside India, place of services outside India, payment is received in foreign currency or permitted RBI currency. And another important which I wanted to discuss, the supplier of service and the recipient of service are not establishment of distinct person, and that is as per explanation to section 8 of the IGST Act. That is the important part. यहाँ पर I just wanted to analyze कि कहीं पर we may be hit by the provisions and we have to see exactly whether we are falling into the export of services or not. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सेक्शन 8 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के, उसके लिए सेक्शन 8 के अंदर 2 क्लॉज हैं. पहले क्लॉज में तो अगर एक ही पर्सन का एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है, एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट दिल्ली में है, एक एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है, उन केसेस में वो दोनों जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं they will be treated as distinct person for the purpose of section 8. दूसरा जो explanation 8 है, that I wanted to highlight. What is that? If a person carrying on the business through a branch or an agency or through representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory. इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मान लीजिए कि A लिमिटेड है, इसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच यूके में है. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 8 ऑल 3 विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, और इनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये मेरे एक्सपोर्ट ट्रीट नहीं होंगे. लेकिन टेक अ डिफरेंट सिनेरियो, व्हेन ए लिमिटेड हैज ए ब्रांच इन दिल्ली एंड मुंबई, these will be the distinct person as per explanation 8. But A Limited has an agency office in UK. This is a separate legal entity. Then, as per explanation 2 of the section 8, if the relationship of the agency or is this company UK, let's say, is the representative office of A Limited or is the agency office, then these will also be called distinct person as per section 8 of IGST Act, and the condition for the export of services may not be completed. So what the point I wanted to draw attention here, कि जब हम भी export of service देख रहे हैं, one is the place of supply becomes very important. The second important factor we should keep in mind, if they should not be distinct person as per section 8 of the IGST Act, because अगर आज हमने किसी चीज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट कर लिया और कल की डेट में डिपार्टमेंट ऑडिट में या स्क्रूटनी में वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं निकला या वो किसी टेस्ट और कंडीशन में फेल हो गया, तो आई थिंक द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इन दिस केस we will require to pay tax, interest, penalty, and I feel actual businessmen may not have the margin of that magnitude. That we have to be very careful. Another important factor while filing the return application, because section 58 is giving us right to file the refund application, but that right is within the limited time period. That means अगर हम 17-18 की बात करें तो मैक्सिमम चीजों के लिए टाइम पीरियड हमारा निकल चुका है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा जो रिफंड एप्लीकेशन है वो विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट फाइल हो जाए. दैट वी हैव टू वेरी केयरफुल. और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि अभी हम आगे देखेंगे, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर मेरे को डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा तो मेरे को फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. इन दैट केस दैट फ्रेश एप्लीकेशन शुड आल्सो बी विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट. दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड. इसमें 2-3 चीजों की हम अपना रिलेवेंट डेट देख लेते हैं. अगर मेरे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं बाय सी और एयर, तो जिस दिन मेरा शिप और क्राफ्ट इंडिया को लीव करेगा वो हो जाएगा. इसमें बेसिकली मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं. बेसिकली सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, देन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. अगर मेरा बेसिकली बिफोर अगर मेरे को रिसीट से मिला है, बेसिकली सर्विस में हम पढ़ेंगे भी एक्सपोर्ट टर्नओवर में. सर्विसेज के केस में क्या हो सकता है कि मेरे को पेमेंट पहले मिल गया, तो जब मेरा सर्विसेज कंप्लीट होगी दैट विल बी द टाइम फ्रॉम वेयर विल बी काउंटिंग 2 years.
और अगर मैंने सर्विसेज कंप्लीट कर दी, पेमेंट नहीं आया, तो फ्रॉम द डेट व्हेन आई have services, I have received the payment. एक important change what we have to keep in mind, that is the accumulation of tax due on inverted structure. आज की डेट में जो इसकी डेट है वो है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39. दैट मींस मैं जो मंथली रिटर्न फाइल करूंगा उससे 2 साल का काउंट होगा. बट दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट इन फ्रॉम 1st of February 2019. उसके पहले ये था, इट वाज बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. दैट मींस 1 फरवरी 2019 के बाद में अगर इन्वर्टेड रेट ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन फाइल करी जानी है, that should be filed within 2 years from the date of section 39 return. लेकिन before 1st of February 2019, this date was financial year, and this date was counted from the end of the financial year. That is an important change, and that may be relevant for 17-18 कि हम ये provision लगाएंगे या पुराना provision लगाएंगे. तो at least if time has expired that way, we can try for that and we can see. So provisions has been changed from 1st February 2019 from that perspective. Now basically, now coming to refund. In refund, basically the major portion of the refund is related to export. So basically, in my presentation, I'll be dealing with basically the export refund, and after that in query session, we can have the queries related to other refunds that way. Now, when we talk about the refund in exports, we can have the two categories. One can be export with payment of tax. One can be export without payment of tax. When I export without payment of tax, then I will be claiming the refund of the ITC. And if I'm making the payment against IGST, then I will be taking the refund of IGST. We just understand with an example for the benefit of all, क्योंकि that मेरे कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है. मान लीजिए कि ABC के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसके ऊपर IGST का जो इम्प्लीकेशन है लेट से 100 लाख का है कि उसको जो उसके ऊपर टैक्स पे करना है एक्सपोर्ट ऊपर के ऊपर IGST लगता है वो 100 लाख का है. उसके पास ITC जो उस महीने का अवेलेबल है लेट से 110 लाख का है. एक सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन हम लेके चलते हैं 80 लाख का है. तो अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ हमारा जो है इट इज बेसिकली 110 लाख का हमारे पास इनपुट अवेलेबल है. पहले ऑप्शन में जब मैं विदाउट IGST अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो इसमें होगा क्या, मैं आउटपुट टैक्स पे नहीं करूंगा, मैं अपने ITC को रिफंड क्लेम कर लूंगा. फॉर्मूला भी हम देखेंगे. और वो मेरा अगर मान लीजिए 110 लाख है पूरा यूज हुआ है तो मैं उसका रिफंड क्लेम करूंगा और मेरे को सेपरेटली प्रोसेस में जाना पड़ेगा. विद IGST अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 मेरा आउटपुट टैक्स है, माइनस 100 लाख मेरा इनपुट टैक्स है. मेरे को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो IGST मैंने पे किया है वो 100 लाख का मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा. यहाँ पर बेसिक प्रैक्टिकल चैलेंज क्या आता है कि अगर मैं IGST के साथ गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूँ, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग for the goods, my refund process is very much automated, or generally practical scenario में what we are finding, the refund is coming within 15 to 20 days that perspective. तो इस सिनेरियो में मेरे को कैश आउटफ्लो भी नहीं करना पड़ा और मेरे को मेरा पूरा रिफंड भी मिल गया. I have gone to IGST for the payment of tax. लेकिन कुछ सिनेरियोज में मेरा हो सकता है कि ITC कम अवेलेबल हो. इसको लेके चलते हैं. मान लीजिए यहाँ पर मेरा ITC लेट से सिर्फ 70 लाख रुपए का है. मान लीजिए मेरा 70 लाख रुपए का है, तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 30 लाख रुपए का अपनी तरफ से आउटफ्लो करना पड़ेगा टू पे द IGST एंड आई विल क्लेम द रिफंड ऑफ 100 लाख रुपीज. सो इन दैट वे मेरा जो इनिशियल कैश ब्लॉकेज होगा वो 30 लाख रुपए का होगा. बट अगर मैं ITC के ऑप्शन में जाऊंगा तो मेरा 70 लाख रुपए का ही मैं रिफंड सेपरेटली फाइल कर दूंगा. तो यहां पर व्हाट आई वांटेड टू ड्रॉ द पॉइंट कि दोनों ही ऑप्शन में अल्टीमेटली फर्स्ट व्हाट आई हैव टू सी व्हाट इज द कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लो इन्वॉल्व्ड ऑफ द assessee, number one, and what will be the time frame in which the refund is being granted. If we club these two things, then the decision can be taken कि हम
जो एक्सपोर्ट है, स्पेशली इफ यू टॉक फॉर द गुड्स, कि हम आईटीसी के अगेंस्ट करें या फिर हम पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के अगेंस्ट करें, because that is affecting the cash flow of the business also, so that decisions should be taken accordingly. अगर मैं आईजीएसटी के अगेंस्ट करता हूं तो टेक्निकली देयर इज अ रूल 96, वो सारा हमारा गवर्न करता है। यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर डीम्ड एक्सपोर्टर है या मर्चेंट एक्सपोर्टर से मैंने परचेज किया है तो उस केस में मैं रूल 96 में नहीं जा सकता। दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में क्या है कि अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैं हो सकता है राजेश जी से कहूं कि आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर मेरे को सामान दे दो, जिसमें कि राजेश जी मेरे को 0.1% टैक्स लगा के सामान देंगे और विद स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स मैं उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो उस केस में देयर इज रिस्ट्रिक्शन कि मैं विद आईजीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरे को आईटीसी का रिफंड लेना पड़ेगा, रूल 89 में जाना पड़ेगा। दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रूल 96 के अंदर दैट मींस मैं एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी का जो एक्सपोर्ट करूंगा उसके अंदर दो रिस्ट्रिक्शंस हमें दिमाग में रखने हैं। पहला, अगर मैं एज ए डीम्ड एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम कर रहा हूं तो मैं रूल 96 में नहीं जा सकता। दूसरा, अगर एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर्स मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं रूल 96 में नहीं जा सकता। अब आता है, अगर मैंने आईटीसी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट किया है, दैट मींस एलयूटी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट किया है और आईटीसी का मेरे को एक्सपोर्ट रिफंड लेना है, तो बेसिकली तीन कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी, 89(4), 4A एंड 4B। दैट मींस मर्चेंट एक्सपोर्टर, डीम्ड एक्सपोर्टर, ये मेरे 89(4A), 4B में अलग से कवर हो जाएंगे। मैं 89(4) के अंदर इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो 89(4) हम बेसिकली अभी देखने की कोशिश करेंगे कैसे चीजें उसमें आएंगी। नाउ बेसिकली फर्स्ट वी टॉक अबाउट export of goods against payment of IGST. Briefly I will discuss in very short this thing. जब मैं export कर रहा हूं against payment of IGST, तो basically what happens कि मेरी जो shipping bill है that becomes my application along with my GSTR 1 and 3B। वहां पर मेरा वैलिडेशन दो पॉइंट्स पर, दो जगह पर होता है। एक तो GSTN उस चीज का वैलिडेशन करता है और दूसरा कस्टम्स करता है। जीएसटीएन किस चीज का वैलिडेशन करता है? जीएसटीएन वैलिडेशन करता है कि मैंने जो अपने जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 6A भरी है और जीएसटीआर 3B के अंदर बेसिकली टेबल 3.1A भरी है, ये आपस में मैच होती है कि नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो टेबल 6A के अंदर इंफॉर्मेशन है, बेसिकली पोर्ट कोड, शिपिंग बिल, ये दोनों फिल है कि नहीं है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल है इनवॉइस लेवल पर, तो जीएसटी अपने डाटा को कस्टम्स में यानी कि आइस गेट पर ट्रांसमिट कर देता है। जीएसटी लेवल पर ये मैचिंग नहीं होती कि मेरा शिपिंग बिल सही है कि नहीं सही है, शिपिंग बिल के अंदर जीएसटीएन मैच करता है कि नहीं करता, शिपिंग बिल के अंदर इनवॉइस नंबर सही है कि नहीं सही है, ईजीएम फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। बेसिकली जो मेरा जीएसटीएन है दो ही चीजों का वैलिडेशन करता है कि मेरा जो टैक्स पेड है अंडर 3.1A ऑफ द जीएसटीआर 3B, वो मेरा जो टेबल 6A के अंदर जो मैंने इनवॉइसेस दिखाई है एक्सपोर्ट की, उसके बराबर या उससे कम है, तो उससे कम तो नहीं, अगर कम होगा तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। दूसरा, वो चेक करेगा कि पोर्ट कोड और डिटेल सही है कि नहीं है, सही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आइस गेट में डाटा ट्रांसमिट होगा। ये दोनों में अगर कोई चैलेंज है तो हमें अपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B को अमेंड करना होगा एंड देन द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय जीएसटीएन टू कस्टम्स। अब जब डाटा कस्टम में चला जाता है तो वहां पर बेसिकली डाटा का वैलिडेशन होता है। देखिए कस्टम वालों के पास, आइस गेट के पास बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उनके पास शिपिंग बिल है, उनके पास जीएसटीआर 1 है, उनके पास जीएसटीआर 3B है और उनके पास ईजीएम है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, दैट इज सबमिटेड बाय द शिपिंग लाइंस। तो इन सारी चीजों को वो वैलिडेट करता है। अगर इस सब में प्रॉब्लम आती है तब हमारे पास प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमें रिफंड नहीं मिलता, और उस रिफंड नहीं मिलने के लिए हमें आइस गेट की साइट पर अगर हमें रिफंड मिलता है तो हमारे अकाउंट में आ ही जाएगा, पता चल जाता है। रिफंड नहीं मिलता तो कस्टम के एंड पर प्रॉब्लम है, तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट तरह के कोड्स की इशू हो सकते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। अगर कस्टम के एंड पे हमारा रिफंड नहीं मिला है तो जो डिफरेंट कोड्स अवेलेबल हैं, अगर हम उस पर जाते हैं तो हमें मिलते हैं। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उन कोड्स की रिलेवेंस क्या है और उसको हम प्राइमा फेसी
कैसे सही कर सकते हैं। SB 001 दैट मीन 000 मीन्स सभी चीज सही है, यहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एट मींस रिफंड इज ग्रांटेड। SB 001 में शिपिंग बिल की डिटेल में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स हमने जो GSTR 1 के अंदर शिपिंग बिल की डिटेल्स डाली है उसके अंदर कहीं ना कोई इशू है, हमें अपने GSTR 1 को अमेंड करना पड़ेगा, शिपिंग बिल की डिटेल को सही करना पड़ेगा, देन इट विल बी डन। SB 002 बेसिकली हम अपने एंड पे नहीं कर सकते, that means the EGM has not been filed by the shipping line, then we have to follow up with the freight forwarders or the shipping lines that they have to file the EGM. SB 003 is basically GSTN mismatch, इसका भी आज के डेट में कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने शिपिंग बिल के अंदर आपने GSTN नंबर गलत मेंशन कर दिया है तो मैनुअली इंटरवेंशन के अलावा कोई इसका कोई सर्कुलर या आज की डेट में कोई सोल्यूशन अलग से नहीं है। SB 004 basically as 3 we have done, 4 is basically the record has been already validated, यहां पर भी चलेंगे। मेजर इशू आता है SB 005 इनवॉइस मिसमैच, कि मेरी इनवॉइस मिसमैच हुआ है, तो SB 005 इसके लिए आता है। तो इसके लिए बेसिकली एक रिसेंट सर्कुलर कस्टम का है 22/2020, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दिसंबर 2019 तक की अगर शिपिंग बिल में SB 005 का अगर मिसमैच है तो कस्टम पोर्ट्स के थ्रू उन एरर्स को सही किया सकता है। वी हैव टू फाइल द एप्लीकेशन एंड दैट कैन बी डन दैट वे। सो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जब मैं IGST का रिफंड ले रहा हूँ तो बेसिकली मेरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है। मेरे को ये अगर मेरा रिफंड नहीं ग्रांट हुआ है तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी एरर किस लेवल पर है एंड अकॉर्डिंगली दोज एरर्स नीड टू बी करेक्टेड। Now coming to the next thing, refund of the ITC. When we talk for the refund of ITC, first we talk about the process flow, how it moves. सबसे पहले जो मेरा है, मैं जो एप्लीकेशन आज की डेट में फाइल करता हूं, that is basically RFD 01. इसके लिए एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि आज की डेट में हमारे लिए दो मोस्ट रिलीवेंट सर्कुलर हैं, 125 नंबर एंड 135 नंबर, क्योंकि सितंबर 2019 से मेरे रिफंड फाइल एप्लीकेशन करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है और पुराने जितने मैक्सिमम सर्कुलर थे हमारे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के, वो 125 नंबर सर्कुलर से सुपरसीड हो गए हैं। तो दैट मींस दैट सर्कुलर इज इफेक्टिव एज ऑफ नाउ। और 125 सर्कुलर के अंदर 2-3 इश्यूज थे, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उनको दे हैव क्लैरिफाइड थ्रू सर्कुलर नंबर 135। तो बेसिकली मैं जो एप्लीकेशन फाइल करता हूं वो मैं आज की डेट में एप्लीकेशन RFD 01 फाइल करूंगा, एक्सेप्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगेंस्ट IGST। अब जब मैं RFD 0 फाइल करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं जो मेरे को मिले, या तो RFD 02 फाइल होगा या फिर RFD 03 फाइल होगा। मेरे को जो मेरा जो ऑफिसर है वो देगा। RFD 03 इज एक्नॉलेजमेंट कि मेरी जो रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल हो गई है। RFD 03 इज डेफिशिएंसी मेमो कि आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है, आपको एप्लीकेशन द्वारा फाइल करने के लिए कहा जाता है व्हेन द RFD 03 इज गिवन टू यू। ये जो प्रोसेस है ये 15 दिन के अंदर होना चाहिए। देखिए कई बार जो टाइमलाइंस हैं वो टाइमलाइंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर हम थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं 2 साल के तो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं RFD 03 मेरे को मिलता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को RFD 1 फिर से फाइल करना पड़ेगा, फ्रेश फाइल करना पड़ेगा। यहां पर एक कैच है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। मान लीजिए कि मेरा 17-18 का रिफंड है, इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी। मैंने जो RFD 1 फाइल किया इसके लिए, ओरिजिनल RFD 1 वो फाइल किया 10 मार्च 2020 को। मेरी एप्लीकेशन में कुछ डेफिशिएंसी थी, ऑफिसर ने मेरे को RFD 03 इशू कर दिया 25 मार्च
2020 को। अब मैं दो पॉसिबिलिटी है, मैंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी 29 मार्च 2020 को, दूसरी एप्लीकेशन फाइल करी 5 अप्रैल 2020 को। मैं अभी इसमें कोविड का पीरियड का इंप्लीकेशन नहीं ले रहा हूं, बिकॉज उसके कारण जो चीजें मेरे एक्सटेंशन है दैट इज अ सेपरेट थिंग। जो मेरी नई एप्लीकेशन 29 मार्च 2020 को है, ये मेरे विद इन 2 इयर्स है, दैट विल वैलिड एप्लीकेशन एज पर सर्कुलर 125। लेकिन जो मेरी 5 अप्रैल 2020 को मैंने जो एप्लीकेशन फाइल करी है, ये जो एप्लीकेशन है ये बियॉन्ड 31 मार्च 2020 है, इसके अगेंस्ट मेरे को रिफंड प्राइमा फेसी ग्रांट नहीं होगा। मैं जो पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, मेरे को जो 2 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो चाहे मैं ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करूं या RFD 03 फाइल करने के बाद में फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करूं, वो दोनों ही एप्लीकेशन या जब भी एप्लीकेशन जो फाइल होगी जिसके अगेंस्ट मेरे को रिफंड मिलेगा, वो एप्लीकेशन विद इन 2 इयर्स होनी चाहिए। मैं ओरिजिनल एप्लीकेशन मेरी पहले थी और मेरी बाद की जो एप्लीकेशन है आफ्टर RFD 03 वो बाद की है आफ्टर 2 इयर्स, तो रिफंड्स विल नॉट बी ग्रांटेड एज पर सर्कुलर नंबर 125। हम इसके लिए कोर्ट में कितना जा सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, but procedural part as per the circular is refund will not be granted from that angle. Now coming to the other process, मेरे को RFD 02 मिल जाता है। RFD 02 मेरे को 15 दिन के अंदर मिलना है, that is called date of acknowledgement, date of filing, date of RFD 02 कहलाएगी। इसके 7 दिन के अंदर within 7 days मेरे को प्रोविजनल रिफंड मिल जाना चाहिए इन द केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। RFD 04 के अंदर प्रोविजनल रिफंड, और इसकी जो पेमेंट एडवाइस है वो RFD 05 होगी। विद इन 7 days ऑफ दिस आई शुड गेट इट। अब इसके बाद में अगर असेसी को कोई इशू, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई इशू है, तो वो मेरे से RFD 08 में इंक्वायरी कर सकता है। ये बेसिकली शो कॉज नोटिस है। इसके 15 दिन के अंदर मैं RFD 09 में रिप्लाई दूंगा। इसके बाद में मेरे पास जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर RFD 06 में ही आएगा। ये रिप्लाई है एंड RFD 06 इज ऑर्डर। सो बेसिकली RFD 06 मेरा ऑर्डर है, चाहे उसमें रिजेक्शन हो, चाहे मेरे को मेरा रिफंड ग्रांट हो, और चाहे मेरे को पार्शियली रिफंड मिले या पार्शियली रिफंड मेरा रिफंड रिजेक्ट हो, तीनों ही सिचुएशन में मेरा RFD 06 आएगा। और एज पर सेक्शन 56 मेरे को अगर ये रिफंड 60 दिन के अंदर नहीं आता है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और 9% अगर बिकॉज ऑफ द अपील या एडजुडिकेशन ऑर्डर के कारण मेरे को रिफंड है। तो ये जो 60 दिन है, ये 60 दिन मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन से काउंट होगा जिस दिन मैंने अपनी एप्लीकेशन RFD 01 फाइल करी है। और अगर मेरा कोई रिफंड का एडजस्टमेंट है RFD 07 के अंदर, आइदर अंडर सेक्शन 5410 और 5411, तो वो जो ऑर्डर एडजस्टमेंट का है दैट विल बी कमिंग इनटू RFD 07। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे काम की बात यहां पर क्या निकल के आती है, 2 चीजें निकल के आती हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। मेरा जो फाइनल ऑर्डर है वो RFD 06 में ही आएगा। पेमेंट एडवाइस है वो RFD 05 में आएगी जिसके थ्रू मेरे को रिफंड मिलेगा। RFD 06 में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे को रिफंड पूरा का पूरा ग्रांट किया जाए, मेरा रिफंड ग्रांट ना किया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, या पार्शियल रिफंड करके पार्शियल रिजेक्ट करा जाए, यानी कि रिजेक्शन भी है और मेरे को रिफंड ग्रांट भी हुआ है। इन सारी ही सिचुएशन में ऑर्डर हैज टू बी इन RFD 06। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज टू बी विद इन 60 days ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, not the RFD 02 date. It is 60 days from the date of filing application. That means RFD 01 की जो डेट है उससे जो मेरे को 60 दिन काउंट होने हैं उसी में मेरे को रिफंड मिलना है। That's why सर्कुलर 125 के अंदर ये कहा गया है कि बेसिकली आप अपने प्रोसेस को 45 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए,
और ताकि 60 दिन में इसको करा जा सके। और अदरवाइज सेक्शन 56 के अंदर इंटरेस्ट आइदर एट द रेट ऑफ 6% और अपील या एडजुडिकेशन का मैटर है तो वहां पर 9% का मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो बेसिकली दैट इज अ प्रोसेस फ्लो कि हमें कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है और हमें क्या चीजों को मिलेगा। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है, शो कोज नोटिस RFD 08। अगर मेरे को शो कोज नोटिस RFD 08 मिलता है तो मेरे को उसको 15 दिन के अंदर रिप्लाई सबमिट करना है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कमिंग टू रिफंड ऑफ ITC। रिफंड ऑफ ITC में पहले हम 2-3 टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम फॉर्मूला देखते हैं या फॉर्मूले में पहले आ जाते हैं क्या है। देखिए जो मैंने विंडो ली है, ये विंडो बेसिकली मैंने ली है जो मेरे हम जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके लिए। इसके अंदर आप देखें तो 3 चीजों की जरूरत है। मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। मैं जो रिफंड कैलकुलेट करूंगा ITC का वो बेसिकली प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लूंगा। रिफंड ऑफ ITC, मैक्सिमम रिफंड ऑफ ITC इज इक्वल टू नेट ITC divided by my turnover, export turnover divided by adjusted turnover। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं ब्रीफ में कि मेरे को जो पहली कैलकुलेशन करनी है, मान लीजिए कि मैं मई 2020 का एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं ITC रिफंड का फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो मेरे को तो सबसे पहले ये देखना है कि मैं नेट ITC कितना क्लेम करता हूं, फिर ये देखना है कि मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना है और मेरा एक्सपोर्ट के अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज का टर्नओवर कितना है। ये मेरे को टर्म समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करते हैं नेट ITC। नेट ITC की जो डेफिनेशन है रूल में, पहले हम रूल की डेफिनेशन को देखते हैं, देन विल कमिंग टू पॉइंट्स की कहां पर चले जाते हैं। ITC availed on the input and input services during the relevant period other than the rule 49 4A and 4B of rule 89। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल गुड्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम ITC का रिफंड ले रहे हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल गुड्स का रिफंड इसके अंदर नहीं मिलेगा। अगर वो हमें लेना है तो रूल 96 में जाना पड़ेगा। एज ऑफ नो ये प्रोविजन है। अगर मेरा रिफंड मैं डीम्ड एक्सपोर्ट के अगेंस्ट या मर्चेंट एक्सपोर्टर के अगेंस्ट 4A 4B में ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट जो ITC है उसको भी मैं अलग कर दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जस्ट आई वांटेड टू शेयर हियर कि मैं जो नेट ITC क्लेम कर रहा हूं, यहां पर मेरे को कॉशियस हो जाना है। कॉशियस क्यों हो जाना है? मैं यहां पर सिर्फ एलिजिबल ITC को ही क्लेम करूंगा। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। मेरे को 17(5) के कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स हैं। अगर मैं 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट को यहां पर अप्लाई करूंगा तो एक तो मेरी रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी रिफंड के साथ साथ 73, 74 की होंगी और मेरे को इंटरेस्ट भी लगेगा और उसका मेरे को रिफंड भी नहीं मिलेगा। दैट थिंग आई हैव टू कीप इन माइंड। क्योंकि उसके लिए आपको एक मैं टेबल दिखाता हूं। दैट इज अ टेबल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस व्हिच विल बी सबमिटेड विद माय रिफंड एप्लीकेशन। ये टेबल मैंडेटरी है एनेक्सर बी की फॉर्मेट में। मेरे को GSTN नंबर सप्लायर का बताना है, मेरे को नाम सप्लायर का बताना है, मेरे को इनवॉइस डिटेल्स बतानी है, मेरे को ये बताना है कि इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स है कि नहीं, क्या है इसमें से। फिर मेरे को HSN कोड बताना है, फिर मेरे को टैक्स की अमाउंट बतानी है, देन मेरे को एलिजिबल ITC बताना है, देन अमाउंट एलिजिबल बताना है। दैट मीन्स आप ये देखिए कि एक्सपोर्टर जो कि रिफंड क्लेम कर रहे हैं मंथ टू मंथ बेसिस पर अपने ITC रजिस्टर को ही डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं। एक तरह से एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था सर्कुलर 135 के 3 में के रेस्पेक्ट में कि अगर सप्लायर की इनवॉइसेस पर HSN कोड नहीं है तो हमें यहाँ पर HSN कोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर की इनवॉइसेस में HSN कोड दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पर HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि हम अपने ITC की सारी डिटेल एक एक्सेल शीट की फॉर्मेट में डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं।
यहाँ पर मेरा कुछ भी अगर आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्कुलर 125 के अंदर दे हैव गिवन द प्रोसेस। वो एक अलग चैलेंज है कि सर्कुलर के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मैटर, बट लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट विल गोइंग टू हैपन कि अगर मैंने कोई इनएलिजिबल आईटीसी का क्लेम कर लिया है रिफंड, अपने रजिस्टर में यहाँ पर एनेक्सर बी के अंदर भी उसकी डिटेल दी है, और यहाँ पर मैंने रिफंड कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है, तो मेरे शो को जो आरएफडी 08 के अंदर जो मेरे को डेफिसिट, जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शो कोज नोटिस होगा, दैट विल बिकम द शो कोज नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, और उसके अगेंस्ट जो है ऑफिसर मेरे अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट करके डीआरसी 07 के थ्रू एक लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है इन माय लायबिलिटी रजिस्टर, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा ना हो हम एक तरफ तो रिफंड लेने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो रिफंड ना मिलके मेरी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए अगेंस्ट माय आईटीसी। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है कि जब मैं अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, द प्रॉपर ऑफिसर एनालाइज माय आईटीसी, आई हैव टू एनालाइज माय आईटीसी कि उसके अंदर कोई इनएलिजिबल आईटीसी तो नहीं है, दैट आई हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था टर्नओवर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट टर्नओवर। उसमें अगर मैं गुड्स की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है रिसेंटली 2020 के अंदर ही। बेसिकली टर्नओवर गुड्स में जितनी भी वैल्यू का मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया वो वैल्यू ले लेंगे, लेकिन उन्होंने एक रूल्स के थ्रू एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया फॉर द गुड्स पर्पस, वैल्यू एट विद 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द क्वालिटी। दैट मींस अगर मान लीजिए कि मैं एक सिमिलर गुड्स को, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, मैं इस पेन को लेट से जो एक्सपोर्ट करता हूं वो मैं जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करता हूं वो 100 रुपीज की करता हूं, लेकिन मैं जो एक्सपोर्ट करता हूं इस पेन को लेट से 200 रुपए का करता हूं। तो यहाँ पर व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि नहीं, आपकी हम एक्सपोर्ट वैल्यू 200 रुपए नहीं मानेंगे, हम आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू को 150 रुपए लेंगे, which is 1.5 times of the domestic value of the similar product you are selling to the domestic market. लेकिन the challenge comes when I am only exporting the goods, I am not selling into the domestic market. So what they are saying, similarly place the supplier as declared by the supplier. That means मेरे को ये देखना पड़ेगा कि similar kind of quality, similar kind of supplier कौन सा सप्लाई कर रहा है, and I think this is very subjective issue going to give the litigations, lot of litigations, क्योंकि मेरा specifications में challenge हो सकता है, but at the end of the day we have to keep the working for that purpose. इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं हम ट्रांसफर प्राइसिंग में उन चीजों को कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट आईटीसी का क्लेम कर रहा हूँ, व्हाट आई हैव टू कीप इन माइंड कि मेरे को वैल्यूएशन देखना है कि कहीं वो सिमिलर गुड्स के अगेंस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा ना हो। नौ उसके बाद में जो टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में वी हैव टू ऐड द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में व्हाट वी हैव टू डू, मैं पूरे महीने भर के अंदर जो मेरे को पेमेंट आया है अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको लूंगा, उसमें से मैं ऐड कर दूंगा उन फिगर्स को जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया है। मान लीजिए मैं मई में बात करता हूं, मई 2020 में, तो मेरे को अगर कोई एडवांस लेट से जनवरी 2020 में आया था, वो सर्विसेज मेरी कंप्लीट हुई मई 2020 में, तो मैं उसको अपनी ऐड कर दूंगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर। इसी तरह से मान लीजिए मई में मेरे को 1 लाख यूएसडी आए जिसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज कंप्लीट करी जून 2020 में, तो मैं उस अमाउंट को घटा दूंगा फ्रॉम माय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द सर्विसेज, तो नेट मेरा मिलके आ जाएगा व्हाट इज द एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस। तो मैं फिर से एक्शन पॉइंट बोल रहा हूँ सर्विसेज के लिए, मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मई में अगर मैं बात करूं तो मई के अंदर इसको एक फिगर्स के साथ बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मई 2020 का मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया, इसमें टोटल रिसीट्स जो फॉरेन करेंसी की रिसीट्स हैं लेट से वो 10 लाख INR है। मैंने जनवरी 2020 में लेट से 1 लाख रुपीज एडवांस रिसीव किए थे, जिसकी की सर्विस जो कंप्लीट हुई है वो मेरी मई 2020 में हुई है। इसके अलावा मेरे को जो मई 2020 में 10 लाख रुपए मिले हैं, इसमें से 2 लाख रुपए ऐसे हैं जिसकी की जो सर्विस कंप्लीट हुई है वो लेट से जून में जाके कंप्लीट होगी। तो व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विसेज, दैट विल बी 10 लाख ऑफ रुपीज प्लस जो मेरा पहले पैसे आ चुका है और जिसके अगेंस्ट
मैंने सर्विसेज अब कंप्लीट करी है वो मैं ऐड कर दूंगा, माइनस जो मेरे को मई में पैसे मिले हैं लेकिन जिसके अगेंस्ट मैं सर्विस कंप्लीट करूंगा इनकमिंग मंथ्स, यानी कि वो एडवांस है इस महीने का, उसको घटा दूंगा, तो वो मेरा पूरा पूरा एक्सपोर्ट टर्नओवर हो जाएगा. दैट मींस 9 लाख ऑफ रुपीज विल बी माय एक्सपोर्ट टर्नओवर. And when I talk about the adjusted total turnover मेरा हो गया कि टोटल टर्नओवर उस स्टेट का, सर्विसेज का टर्नओवर जो मैंने जैसे बात करी उस एंगल से, लेकिन उसमें से मैं घटा दूंगा जो मेरे एग्जम्प्टेड टर्नओवर का पार्ट है, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करूंगा, और जो टर्नओवर मेरा रूल 4A के हिसाब से, बी के हिसाब से है, उस टर्नओवर को मैं उसमें से घटा दूंगा. सो बेसिकली अब मैं इस फॉर्मूले पर वापस आता हूं. मैं इस महीने के लिए जो आईटीसी है, नेट आईटीसी को प्रोपोर्शनेट कर दूंगा एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, उस आईटीसी को मैं रिफंड क्लेम करूंगा. इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मैं कैपिटल गुड्स का जो मेरा रिफंड है, आईटीसी है, उसको नहीं लेता हूं. दैट आई हैव टू कीप इन माइंड. अब लेकिन सॉरी, ये जो रिफंड है, इस रिफंड में मेरे को 3 क्राइटेरिया हैं. पहला, मेरा जो मैक्सिमम रिफंड की जो कैलकुलेशन मैंने करी. दूसरा, जिस पीरियड में मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी उस पीरियड का आईटीसी कितना पेंडिंग है. तीसरा, मेरे लेजर में कितना अमाउंट पेंडिंग है. तीसरा, जिस पीरियड में का ये एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि मैं जनवरी 2020 की एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, तो आईटीसी पेंडिंग फॉर रिलेवेंट पीरियड. इन तीनों में से जो मिनिमम फिगर होगी उसका मेरे को रिफंड मिलेगा. बेसिकली फॉर्मूले से मेरे मैक्सिमम रिफंड की कैलकुलेशन निकल के आती है, लेकिन उसको मेरे को 2 फिगर्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मेरे लेजर में, आईटीसी लेजर में कितना आईटीसी पेंडिंग है एज ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. नंबर 2. नंबर 3, मेरा आईटीसी कितना पेंडिंग है मेरे लेजर में जिस महीने की वो एप्लीकेशन है. तीनों में से जो मिनिमम है, दैट रिफंड विल बी ग्रांटेड. व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये तीनों जो है मेरे आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तीनों का मिला के एक साथ मेरे को रिफंड मिलेगा. दैट आई हैव टू कीप इन माइंड. अब अगर हम इन्वर्टेड रेट ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें, इन्वर्टेड रेट ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लूंगा, ज्यादा नहीं इसमें करेंगे, बाकी क्वेश्चंस विल कवर, ट्राई टू कवर अप द थिंग्स, कि ये तब एप्लीकेबल है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर जब मेरे इनपुट का रेट मेरे आउटवर्ड सप्लाई से ज्यादा है. दैट मींस मेरे इनपुट जो हैं, जो गुड्स हैं, उसके रेट्स को मेरे को कंपैरिजन करना है विद माय आउटवर्ड सप्लाई. इसके अंदर भी प्रोपोर्शनेट फार्मूला वही बैठता है. द ओनली डिफरेंस विल बी कमिंग हियर कि मेरा जो टर्नओवर है, जो नेट आईटीसी है, दैट विल बी ओनली फॉर, एज पर द रूल 89, इज ओनली फॉर द इनपुट, नॉट फॉर द इनपुट सर्विसेज or for the capital goods. And when I'm talking for the adjusted turnover and everything, definition will be coming which is as per rule 89(4). इसके बाद में सेक्शन मैंने डिलेड इंटरेस्ट की बात कर ली थी. 54 के अंदर मेरे को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा. इसके बाद में पीपीटी मैंने सारे सेक्शंस को कंपाइल किया हुआ है. सो राजेश जी, अगर आप कहें तो वी कैन गो फॉर द क्वेरी सेशन एंड डिस्कस द प्रोग्राम. यस सर प्लीज. Yeah, so I think you can start the query and we can do that way. सर क्वेरी कुछ चैट बॉक्स में मैं पढ़ूं या आप पढ़ करके रिप्लाई देंगे या मैं पढ़ता जाऊं, बताएं सर. सर आप रिलेवेंट है जो पढ़ते जाइए, जो मैं पढ़ रहा हूं. फिर 1-2 रेज भी हैं, फिर उनको ले लेंगे. पहले पढ़ लेता हूं. हाँ जी. What is impact if exporters receive goods partly under notification 40/2017 and 78/2017 custom and partly under regular purchase? सर वो मैंने बड़ा क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के एप्लीकेशंस हैज टू बी फाइल्ड सेपरेटली. वी कैन नॉट क्लब बिकॉज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन रूल 89, 89(4)(a) and 4(b) has to go separately. We have to file a separate application for that purpose. Okay. Next question. If in a single month there is a refund due to export with payment of duty, LUT, and inverted duty structure, then which figures is to be taken in ITC and adjusted turnover? See, basically I can file multiple figures, multiple application in single month. There is no doubt about it. Number 1. Number 2, my calculation methods will not change. The only thing what will happen, because what is the precaution is there. मान लीजिए कि पहले मैंने रिफंड ले लिया इन्वर्टेड रेट का,
तो मेरे आईटीसी लेजर में जितना लेजर मेरा जो बचा हुआ पैसा है उससे ज्यादा मैं रिफंड दूंगा ही नहीं। मान लीजिए कि मैंने आईटीसी का एडजस्टमेंट कर दिया आईजीएसटी के अगेंस्ट, तो इन्वर्टेड रेट की कैलकुलेशन करने के बाद में जो मेरा फॉर्मूले से दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड, बट मेरा लेजर में तो पैसा होगा ही नहीं, तो आई विल नॉट पे अलाउड द रिफंड व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन माय आईटीसी लेजर। सो व्हाट इज माय पॉइंट हियर, द फॉर्मूला एंड द कैलकुलेशन विल गो इन द सिमिलर मैनर, एंड जब हम अपने आईटीसी लेजर से चीजों को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिगर्स विल बी कमिंग इन द ऑटोमेटिक मैनर दैट वे। Next, sir, can we take refund of IGST paid on import machine? IGST refund on IGST paid on import of machine. for what purpose? See, उसका वो export, if you can ask again, whether वो machine को further export कर रहे हैं या वो utilize कर रहे हैं for the purpose of making the goods and services. इसमें क्लियर नहीं है सर। यूटिलाइज मैं इसको यूटिलाइज अगर समझ के अगर हम बात करते हैं तो यूटिलाइज समझ के देखिए बड़ा क्लियर है कि सेक्शन 89 के अंदर कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर मैं आईटीसी का रिफंड लेना चाहूंगा तो रूल 89 के अंदर उस मशीनरी के इंपोर्ट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आईजीएसटी के अगेंस्ट अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो मेरी मशीनरी है और मैं मशीनरी को यूज कर रहा हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माई गुड्स, देन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हनी कंसल जी का है, इन केस ऑफ वेंडर सेलिंग गुड्स ऑनलाइन द आउटवर्ड सप्लाई इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 3%. मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट एक्युमुलेशन इज द जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 18% ऑन कमीशन एटसेट्रा. कैन वी टेक रिफंड ऑफ दैट अमाउंट? सर डिपार्टमेंट और लॉ नहीं दे रहा है इस चीज को, एक टेबल के इसके थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि मैं गुड्स परचेज करता हूं 18% पे और सेल भी करता हूं 18% पे जी, मैं कमीशन पे करता हूं 18% पे, इसको गुड्स को मान लेते हैं 12% पे है। मेरा जो क्रेडिट अकुमुलेशन हो रहा है वो मेरी सर्विसेज के कारण हो रहा है, यानी कि जो मेरी इनपुट सर्विसेज का अकुमुलेशन है वो हो रहा है। तो डिपार्टमेंट का व्यू भी यही है, और जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 है, दो लॉट ऑफ रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन गुजरात हाई कोर्ट एंड नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स एंड नोटिसेस हैज बीन इशूड, बट प्रैक्टिकली अगर मैं लॉ के हिसाब से आज की डेट में बात करूं तो 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 बात करता है कि अगर मेरे इनपुट्स का रेट ज्यादा है मेरे आउटवर्ड सप्लाई से, then the refund is granted for the purpose of section 54(3). So prima facie this will not be granted, but I am putting a caveat here, writ petitions are pending before numerous high court, whatever the decisions comes here then the things can happen that way. नेक्स्ट क्वेश्चन अखिलेश गर्ग जी का है, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सेल प्राइस, हाउ इट इज प्रैक्टिकल टू डिसाइड द चेंजेस थ्रू सर्कुलर? सर ये तो मैं शुरू में बोला कि जहां तक लीगलिटी की बात करें, जो बेसिकली जो 1.5 है वो सर्कुलर के थ्रू नहीं है, वो रूल में इन्होंने चेंज किया है, दैट द फर्स्ट पॉइंट। जो इन्होंने चेंज किया है दैट इज इन द रूल इटसेल्फ, दैट इज नॉट द थ्रू सर्कुलर। ओके सर, इट इज नॉट थ्रू सर्कुलर 125 और सर्कुलर 135, दैट इज अ चेंज इन द रूल इटसेल्फ, एंड आई थिंक रूल के अंदर दे हैव द पावर फॉर दैट पर्पस, दैट इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष पचौरी जी का है, व्हाट विल बी सिचुएशन इन द केस ऑफ हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया एंड ब्रांच इन इंडिया विद रेफरेंस टू सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट? यस सर, एक मिनट मैं जस्ट ये खोल लूं। सर जस्ट ए मिनट में दोबारा से स्क्रीन स्कैन कर रहा हूं अपनी। उसके बाद अंकित गुप्ता जी का क्वेश्चन है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सर बेसिकली हमारी हेड ऑफिस, सर दोबारा से बताएंगे कहां पर है? हेड ऑफिस तो आउट ऑफ इंडिया है, मान लीजिए यूएस में है हेड ऑफिस, और इंडिया में ब्रांच ऑफिस है। सर ब्रांच ऑफिस तो स्क्वायरली कवर्ड है एज ए, दैट विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए तो सर ये अब हमारा है, अंकित जी आस्क योर क्वेश्चन। अंकित जी, हेलो सर।
हाँ बोलो हाँ जी भैया। अंकित जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जब रूल 96 बोला था उसमें आपने बताया था जब जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंसेस हैं तो हमको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा रिटर्न्स को एंड देन रिफंड फाइल करना पड़ेगा। हाँ जी। बट इसमें सर एक प्रॉब्लम है, मान लो हमारे केस में क्या हुआ, अगर जिस मंथ का वो रिटर्न है उस मंथ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो हमें लेटर मंथ में उसको जाके रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो इन केस हाँ अगर इस बीच में अगर वो 2 इयर्स का टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे? और अगर मान लो 2 इयर्स ऑफ टाइम एक्सपायर नहीं भी होता है देन अगर वो अप्रैल मंथ का रिटर्न हमने रेक्टिफाई किया जून में तो हम आईटीसी कैसे लेंगे अप्रैल का? आप एक बार अपने क्वेश्चन को फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा बोलेंगे। मेरा क्वेश्चन हेलो। ये है, फॉर एग्जांपल अप्रैल का रिफंड है आईटीसी अब एक्यूमुलेटेड का, अप्रैल 2020 का अप्रैल 2020 का। हम रिफंड आईजीएसटी का ले रहे हैं कि आईटीसी का ले रहे हैं? मैं एक्यूमुलेटेड आईटीसी का ले रहा हूँ। हाँ तो उसमें मान लीजिए जीएसटीआर 1 और 3B में वैल्यू डिफरेंस आ रहा है। अंकित जी, मैं एक चीज आपको बीच में रोकूंगा। जो रूल 96 मैंने बोला था, जहां पे जीएसटीआर 1 और 3B की मिसमैच की बात कर रहे थे, वो आईजीएसटी रिफंड के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा अगर सर, इसको आप रूल आईजीएसटी का एग्जांपल ले लेते हैं। 96 के रेफरेंस के लिए बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसको आईजीएसटी का एग्जांपल ले लेते हाँ हैं। जी, सर आईजीएसटी का अंकित एग्जाम्पल ले जी लिया। आप अपनी ना क्वेरी रेज कर लो, एग्जाम्पल ना लो, क्वेरीज और भी हैं सर। चलिए बताइए। मेरा सर इतना नहीं, ही क्योंकि क्वेश्चन उसमें है। उनका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है उस चीज में। हाँ, तो मेरा बोलो इतना ही हाँ अंकित जी बस, बोलो। क्वेश्चन है कि अगर वो 2 इयर्स का टाइम बीच में एक्सपायर हो गया और हमने बाद में उसको अमेंड किया तो हम कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, देखिए, बड़ा लॉ में मेरे ख्याल से मेरी भी ओपिनियन यही है और डिफरेंट लॉ के पर्सपेक्टिव पे यही है कि जो रिफंड है मेरा राइट है, लेकिन मेरे को विद इन टाइम पीरियड वो क्लेम करना है। अगर मैंने विद इन टाइम पीरियड क्लेम नहीं किया है तो मेरे को नहीं मिलेगा। दैट इज अ वन पार्ट ऑफ योर आंसर क्वेरी। सेकंड पार्ट, लॉ ये कह रहा है कि मेरे को 2 साल के अंदर रिफंड फाइल करना है, लेकिन मैं उसको आई एम नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू फाइल इट। तो मेरे को कहीं ना कहीं उसकी लीगल रेमेडी में जाना पड़ेगा। मैं पहले मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करूंगा, देन आई हैव टू गो टू द रिट एप्लीकेशन फॉर दैट पर्पस। बट आई कैन नॉट सिट डाउन आइडियली एंड आई कैन से कि मेरे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए व्हाट आई फील कि प्रैक्टिकली व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट फाइल इट मैनुअली, डिपार्टमेंट में सबमिट करिए एंड गो फॉर द लीगल ऑप्शन कि मैं इस वजह से फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि GSTN has not given the option to rectify the return, though the provision law is saying that way. So for that you have to go beyond the normal procedure. I think that will be the only option to go further. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग शर्मा जी का। इन केस LUT फाइल्ड इन May 20 but export of service is made in April 20, can we take advantage of circular 137 available to new LUT holder? सर बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें सर्कुलर 125 के अंदर भी उन्होंने इसको रिट्रेट कर दिया है कि अगर मेरा एक प्रोसीजर लैप्स है, मैंने बाकी सारी चीजों को सही किया हुआ है, तो लेकिन मैंने एक LUT डिले से फाइल करी है, तो बिकॉज दैट माय एक्सपोर्ट बेनिफिट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट कैन बी कंडोन्ड। तो बेटर है वी फाइल एन एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने लेट फाइल करी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर द बेनिफिट्स मे नॉट बी डिनाइड टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन हनी कंसल जी का। If a manufacturing concern is selling goods by way of export sales and as well as domestic sales, there is no direct relation between goods used in manufacture and export sales. How can we segregate the input and claim refund? सर उसके लिए हमारा क्योंकि फॉर्मूला बना हुआ है ना, फॉर्मूले में डिफाइन किया था आईटीसी हम टोटल लेते हैं। आईटीसी वहां पर फॉर्मूले के अंदर टोटल आईटीसी लेने की बात करता है, वो आईटीसी 1-to-1 मैपिंग नहीं है। लेकिन मेरा टर्नओवर तो मेरे को पता है कि डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है, मेरा टोटल टर्नओवर कितना है, मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है। मैं आईटीसी को प्रोपोर्शनेटली लेता हूं फ्रॉम माय एक्सपोर्ट टर्नओवर टू माय टोटल टर्नओवर। So that way the formula has been given in Rule 89, keeping those things in mind. The formula is not saying कि आपको 1-to-1 मैप करना है. That has to be calculated proportionately as per the formula. Okay sir. अमित अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, we have submitted RFD 01 but not filed for 2017-18. At present ITC balance is lower than as application submitted, but now we unable to file RFD 01. Please advise. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोलेंगे?
we have submitted RFD 01 but not filed for 2017-18. At present, ITC balance is lower than as application submitted, but now we are unable to file RFD 01. सर इसमें दो इशू हैं, एक तो 17-18 के लिए मैक्सिमम पीरियड निकल चुका है रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने का, कोई स्पेसिफिक केस में किसी वजह से हो सकता हो तो बात अलग है, अगर मैं लिमिटेशन पीरियड देखूं तो 2 साल निकल चुका है। दूसरा, जब हम आईटीसी की कैलकुलेशन, आईटीसी का रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो अगर मेरे आईटीसी लेजर में बैलेंस ही नहीं है तो मेरे को रिफंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को रिफंड तो उसी चीज का मिल सकता है जो मेरे लेजर में अवेलेबल है। लेजर में अवेलेबल ना होने का मतलब है कि आई यूटिलाइज दैट आईटीसी, रिफंड विल नॉट बी ग्रांटेड टू मी फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इफ बिजनेस इज क्लोज्ड then ITC credit available can be claimed as refund? नो सर, बेसिकली मैंने जो शुरू में बताया कि मेरे को जो रिफंड की कंडीशन है वो है सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 के अंदर, वो बड़ा स्पेसिफिक है कि इन्हीं कंडीशन में आपको कैश रिफंड मिलेगा। अगर मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया है तो गवर्नमेंट तो बल्कि ये कहती है कि अपने आईटीसी को या तो आप रिवर्स कर दो, या फिर अगर आपको जो गुड्स बचे हुए हैं उसके ऊपर अगर आईटीसी आपने ज्यादा लिया हुआ है, आपके लेजर में पैसा नहीं है, तो आपको बल्कि कैश पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दिस इज अ रिवर्स वे बेसिकली, व्हाट आई पर्सनली अंडरस्टैंड, there is no specific provision for that purpose. I think there is no queries now. I request our Rajiv Kohli ji, please present a vote of thanks, sir. Kohli साहब। हाँ जी सर, Actually, thank you for such a nice presentation, all the illustration and solving all the queries, the things for ITC refund, zero rated, credit accumulated, and the what is the basically a very nice advice. We have to go what is as per the law, litigation comes later, and mapping of credit ledger refund to credit ledger, and then the automation and the other points, because everything is totally automated, and what my 0002 SB 002 005 queries, and the timeline has to be maintained, because basically everything is happening is a computerized system. The time is defined, so you can't go beyond that time. तो इसलिए सारी चीजें आ रही हैं सर। थैंक यू फॉर सच एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू जगजीत जी, अजय जी, थैंक यू गुरु जी, दमीजा जी सर, थैंक यू।